So, dear students, now we'll move to integration by parts. I've already written in the previous video the rule. Once again, I am going to write here the rule of u into v dx. Correct? U into v rule, product rule of integration. So, in this rule, u outside integration of v minus integration then derivative of u, since function is x, so with respect to x is derivative, into integration of v dx. And then when you multiply these two, we have at the end another integration. For this we have this integration is there. So this is what u into v rule, u outside integration of v minus integration derivative of u into again integration of v and product of this again integrated by with this with dx. Fine. Now here question comes, which one is going to be u and v? So for this mathematician they made it one shortcut. You can say it's a rule like I, L, A, T and E. Some books they used to write light, Liat, but you prefer islet only. This islet, what it says I is inverse. This is inverse function, correct? Like sine inverse, cos inverse, correct? Tan inverse, all are inverse function. This L is logarithmic function, correct? This is logarithmic function, log x, log sin x and all. A is your algebraic function, x square, x, those are algebraic function. Now t is quite natural, it is going to be trigonometric. So this is trigonometric function, sine, cos, tan. These functions are trigonometric function. And at the end we have exponential, a to the power x, e to the power x. So these are exponential function. Fine. E to the power x, a to the power x, 2 to the power x, fine, 4 to the power x, all these are exponential function, correct? So this islet, what it suggests, that in a integration, let's say I have one integration x square into tan inverse x, correct? Now it looks u and this is another function v, u into v. तो ना अब इसमें u किसको लेना है और v किसको लेना है, तो अब हम ये आइलेट के पास जाते हैं. ये अलजेब्रिक है और ये इन्वर्स है. तो हम इस आइलेट में देखते हैं कि कौन पहले है. सबसे पहले इन्वर्स होता है i. तो जो सबसे पहले आएगा आइलेट में वो हमारा u ट्रीट होगा. दैट मीन्स यहाँ पे इस इंटीग्रल के लिए हमें एक्स स्क्वायर टैन इनवर्स एक्स के लिए, करेक्ट, तो हमने u क्या लेना होगा डियर, u वी विल टेक टैन इनवर्स x. ठीक है. सो वेन एवर इनवर्स फंक्शन इज देयर, ऑलवेज u जो है वो टैन इनवर्स फंक्शन आएगा, बिकॉज आइलेट में i कम्स फर्स्ट. देन वी हैव अलजेब्रिक, सो एक्स स्क्वायर बिकम्स हियर v वी विल टेक एक्स स्क्वायर. ठीक है. एंड देन वी विल यूज द u into v rule and we will get the integration of this function x square tan inverse x. So चले अब देखें इसको इंटीग्रेट कैसे करें x square tan inverse x को. तो there we came to know that u is tan inverse x and v is x square. Fine. अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं. So u into v rule what says, you have to keep outside. So मैंने tan inverse x को u करके आउटसाइड लिखा और x स्क्वायर dx becomes v minus इंटीग्रल
फिर डेरिवेटिव अब मुझे किसका लेना है, tan इनवर्स x का, डी डी एक्स ऑफ, रूल लिखिए या डायरेक्ट भी आप tan इनवर्स x का डेरिवेटिव लिख सकते हैं यहाँ पे, तो मैंने रूल लिख दिया है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ अगेन एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये क्लोज हो गया, वापस एक इंटीग्रेशन एंड में होगी, ठीक है। तो ये रूल के अकॉर्डिंग हमने u इंटू वी रूल जो था उसके अकॉर्डिंग मैंने ये लिख दिया। अब इंटीग्रेशन का टर्न है, नाउ विल इंटीग्रेट, tan इनवर्स x तो आउटसाइड है, दिस इज u, tan inverse x, integration of x square, all of you well versed, this is going to be x cube by 3 minus derivative of tan inverse x is 1 upon 1 plus x square हो जाएगा, फिर integration of x square is x cube by 3, और ये पूरा अब फाइनली एक बार और इंटीग्रेट होगा, फाइन, d इज आउटसाइड, एक बार और हम इंटीग्रेशन करेंगे इसको, सो हियर this equals to x cube by 3 into tan inverse x minus, अब यहाँ इंटीग्रेशन में देखिए आप 1/3 कांस्टेंट बाहर कर लिया, यहाँ क्या रहेगा डियर, एक्स क्यू अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। तो ये इंटीग्रल देखिए आप, दिस इंटीग्रल, ये इंटीग्रल हमारा पी एक्स अपॉन क्यू एक्स है, वेयर पी एक्स की डिग्री ज़्यादा है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे आप, डिवाइड करेंगे, तो मैं इसको रफ में 1 प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स क्यू को डिवाइड कर दे रहा हूँ, बिकॉज क्या है, न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी है डिनोमिनेटर से, एंड पी एक्स अपॉन क्यू एक्स फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन है, रैशनल फंक्शन है, तो डिग्री न्यूमरेटर की ज़्यादा है, तो वी मस्ट टू डिवाइड, फर्स्ट विल डिवाइड विथ x, so what is going to be x cube plus x, now we subtract minus minus, so left with minus, so मेरा इंटीग्रल जो है ये x cube by 3 इंटू tan इनवर्स x, ये तो ऑलरेडी इंटीग्रेट हो चुका है, राइट, माइनस 1/3 आउटसाइड, अब मैं न्यूमरेटर को डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर करूँगा, करेक्ट, सो ये आ गया डियर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, दिस विल कम, देखिए आप ऊपर अगर ओपन करेंगे ब्रैकेट, यू विल गेट सेम एक्स क्यू अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फाइन, ठीक है। आप ये सारे इंटीग्रेशन बेसिक आप पहले भी कर चुके हैं। नाउ एक्स क्यू बाई 3 इंटू टैन इनवर्स एक्स माइनस 1/3, इसको बॉक्स बना लेते हैं, बिकॉज यहाँ भी इंटीग्रेट को हम स्प्लिट करेंगे, तो स्प्लिट करेंगे आप तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर गेट कैंसल, सो एक्स डी एक्स लेफ्ट माइनस यहाँ से रह जाएगा डियर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। सी ऐसे इंटीग्रेशन आप कर चुके हैं पहले भी, तो बाय पार्ट्स में ये सब चीज़ें दोबारा रिपीट होंगी, तो आई बिलीव कि आपको सिंपल ही लगेगा, डिफ़िकल्ट नहीं होगा, और मैं यहाँ समझाने के लिए थोड़ा स्लो जा रहा हूँ, बट आप जब करेंगे तो यू हैव अ गुड स्पीड, फाइन, सो एक्स क्यू बाई 3 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/3, डियर एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, अब फिर यहाँ पे भी देखो आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये x है, अगर मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t पुट करूँ तो 2x होगा ये डेरिवेटिव इसका, तो मैं अगर 1/2 और 2 बैलेंस कर लूँ, करेक्ट, यहाँ 2 बैलेंस कर दिया, कांस्टेंट है, यू कैन मल्टीप्लाई डिवाइड एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, वाई वी डिड, सो दैट इसका डेरिवेटिव मुझे ये मिल जाएगा 2x, तो log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर में लिख सकता हूँ एट द एंड, सो फाइनली एक्स क्यूब बाई 3 tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 3, दिस इज एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2 log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कैन बी राइट, फाइनली, एंड फाइनली एट द एंड c, सबके इंटीग्रेशन के c हमने जोड़ दिया।
ठीक है डियर। तो आप एक बार फिर से देखो, यहाँ जो मैंने किया है ये पार्ट, इसको अच्छे से समझो आप। यहाँ पे 1 + x² थी, इसका डेरिवेटिव 2x आएगा अगर 1 + x² को टी पुट करोगे, तो नो नीड टू पुट हियर। ये सब कुछ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तुरंत आपको इस दिमाग में स्ट्राइक करना है। तो आपने 2 और 2 बैलेंस कर लिया, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव मुझे 2x मिल गया, तो आप क्या लिखते हो, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर को आता है तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। सो आई हैव रिटन हियर log of 1 + x²। फाइन। सो एट द एंड द फाइनल आंसर, अब मैं इसको कंक्लूड करूंगा। सो दिस इज गोइंग टू बी I = x³/3 tan इनवर्स x, ठीक है, ब्रैकेट भी ओपन कर लेंगे हम, x²/6 एंड दिस इज प्लस log 1 + x² plus c. So this will be the final answer of our that integration जो हमने लिया था, ठीक है। एट रैंडम आई चूजन दिस फंक्शन, ऐसे कई फंक्शन आपके होंगे, ठीक है डियर। तो एक बार फिर से आप इसको गो थ्रू कर लें। देखिए, मैंने u/v रूल बताया आपको, उसमें किसको x² को क्या लेना है, tan इनवर्स x को क्या लेना है। I took tan इनवर्स x बिकॉज इनवर्स सबसे पहले आता है I, करेक्ट। एंड देन v x² algebraic comes later, so x² becomes v. Now we have used u/v rule, u outside, integration of v, then integration derivative of u, and then integration of v, correct, and then final integration with dx, ठीक है डियर। So look at this, तो आपने यहाँ पे इसको, इन फंक्शन को इंटीग्रेट किया, x³/3 माइनस डेरिवेटिव किया इसका tan इनवर्स 1 + x² x³/3, और ये फिर ये फॉर्म आया, इसके मैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मैंने यहाँ डिवाइड करके भी दिखाया आपको, दिस डिवीजन, इस डिवीजन से ये आपका ये एडजस्टमेंट आ गया डियर, करेक्ट। एंड देन वी सेपरेटेड, सेपरेट करके ये इंटीग्रल मिला अपने को, ठीक है, ये आपने एडजस्ट किया एंड देन वी सेपरेटेड दिस, और फाइनली वी हैव, लुक एट दिस, इंटीग्रेशन ऑफ x²/2, यहाँ पे आपने 1/2 और 2 एडजस्ट हुआ, ये 1/2, this 2 and this 2, and this came log of 1 + x², ठीक है। so this is your answer। मैंने फाइनली मल्टीप्लाइड दिस ब्रैकेट, ओपन दिस ब्रैकेट, पूरे ब्रैकेट को, और x³/3 tan इनवर्स x माइनस x²/6 प्लस log 1 + x²/6 इज योर आंसर, ठीक है। सो दिस वे u/v वी कैन परफॉर्म, क्लियर डियर। चलिए आइए एक और बाय पार्ट्स के सम्स और देखते हैं। बाय पार्ट्स के सम्स एक दो तो एनडीए में होता ही होता है, ठीक है डियर। चलिए एक मैं एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूँ, I = x × e⁻x × dx, ठीक है। अब x अलजेब्रिक है, e⁻x एक्सपोनेंशियल है, तो एक्सपोनेंशियल तो एट ऑलवेज इट कम्स एट द एंड, आई लेट अगर आप देखो, सो e कम्स एट द एंड ऑलवेज, सो e बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, v, यानी e⁻x जो है ये ऑलवेज v ट्रीट होता है, और अलजेब्रिक आपके एक्सपोनेंशियल से पहले है, सो दिस विल बी एज ए u। नाउ विल यूज द रूल, रूल सेज u outside integration of v, correct, minus derivative of u with respect to x because function is of x, again integration of e⁻x dx, और इसको क्लोज करेंगे और इनका जो प्रोडक्ट आएगा उसको वापस इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। सो नाउ x e⁻x का इंटीग्रेशन डियर, e⁻x माइनस
Derivative of x is 1 and e to the power x integration is e to the power x, fine, into dx. Clear? U into v rule लगाया, किसको u करना है v करना, that we came to know, and now we are integrating. So x into e to the power x minus, अब यहाँ क्या रह गया डियर, e to the power x. So e to the power x का इंटीग्रेशन e to the power x ही होता है, प्लस c आ गया. इसको आप चाहें तो कॉमन लेके e to the power x यू टेक कॉमन, so x minus 1 plus c. So that is going to be the answer of this integration. This I. So I we have, answer is e to the power x minus 1 plus c. ये ऑप्शन में होगा और इसको हम टिक कर लेंगे. ठीक है. सो आई बिलीव यू हैव अंडरस्टूड u into v रूल. थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन ये होता है कि उसमें अब डेरिवेटिव भी आने लगे हैं, तो आपका डिफरेंशिएशन तो 100%, आई एम श्योर दैट ऑल ऑफ यू वेल वर्स्ड विथ डेरिवेटिव. डिफरेंशिएशन में कोई डरने की बात ही नहीं है, आप अच्छे से डेरिवेटिव जानते ही हो. तो बस थोड़े रूल को फॉलो करो तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी इट बिकम सिंपल. ठीक है. आइए नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं बाय पार्ट्स में. लुक एट दिस. I इक्वल्स टू, हमने log x लिया, ठीक है, log x इंटू डी एक्स. अब देयर मैंने इंटीग्रेशन में जब टेबल लिखा था, सो हमने log x का इंटीग्रेशन आपको बोला था लर्न करने के लिए, नहीं. वहाँ पे मैंने आई टोल्ड यू दैट दिस log x इंटीग्रेशन विल बी बाय पार्ट्स में हम करेंगे इसको. ठीक है. तो कैसे यहाँ बाय पार्ट्स में करेंगे, यहाँ तो केवल एक ही फंक्शन दिख रहा है log x ओनली. ठीक है. पर दूसरा फंक्शन कहाँ है, देयर दूसरा फंक्शन यहाँ हिडन है, वो आप है, आप इसको कांस्टेंट कोई ले सकते हैं, 1 इंटू लॉग एक्स तो लिख सकते हैं यहाँ पे. ठीक है. तो 1 को मैंने एल्जेब्रिक का x टू द पावर 0 बना दिया और इसको मैंने लिख दिया log x dx. ठीक है. सम स्टूडेंट से सर e टू द पावर x को 0 कर दो आप, वो क्यों नहीं कर रहे हैं, e टू द पावर x 0, वो भी तो 1 होता है. या साइन एक्स टू दी पावर 0 कर दो, वो भी तो 1 होता है. नो डियर, दिस यू कैन डोंट टेक. देखिए हो सकता है, वाई नॉट, पॉसिबल क्यों नहीं हो, साइन एक्स टू दी पावर 0 ले लेंगे, हो जाएगा. बट थिंग इज कि साइन एक्स टू दी पावर 0 ये जो फंक्शन है, आगे उसकी जब डेरिवेटिव होगी तो वो चेंज हो जाएगा, पूरी इंटीग्रेशन को और कॉम्प्लिकेटेड कर देगा. तो वेनेवर कुछ नहीं है दूसरा फंक्शन, तो टेक एक्स टू दी पावर 0. ठीक है. एल्जेब्रिक का एक्स टू पावर 0 लें, साइन या ई टू द पावर एक्स पे 0 ये नहीं लेना है. करेक्ट. सो डू नॉट थिंक ऑफ दिस. रिमेंबर दैट एक्स टू द पावर 0 विच विल बिकम 1. सो 1 इंटू लॉग एक्स. दैट मीन्स ये एल्जेब्रिक दिख रहा है और ये लॉगरिथमिक. नाउ डियर आईलेट क्या सजेस्ट करता है, ILA. ठीक है ना, ILATE. तो यहाँ पे लॉग जो है एल्जेब्रिक से पहले है, तो मैं यहाँ पे log x को क्या लूँगा, u लूँगा. ठीक है. कंफर्म हो गया कि log x हमारा क्या होगा, u होगा, और x टू द पावर 0 इज गोइंग टू बी v, क्योंकि वो एल्जेब्रिक है, वो log के बाद आया है. करेक्ट. सो तो मैं यहाँ पे अब आता हूँ डियर, log x u आउटसाइड इंटीग्रेशन ऑफ v, एक्स टू 0 लिखिए या डी एक्स लिखिए वो भी चलता है, एक्स टू 0 डी एक्स या डी एक्स भी लिखे तो भी यही मीनिंग है. इंटीग्रेशन ऑफ, माइनस बीच में कंपलसरी याद रखना है, रूल कहता है. नाउ डेरिवेटिव ऑफ किसका, log x का, u है ना वो, log x, एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 0 dx, और ये पूरा dx के साथ एंड में इंटीग्रेट होगा. फाइन. नाउ log x into x to the power 0 dx, that is dx only. ये क्या है, dx है, और dx का इंटीग्रेशन x to the 0 dx कीजिए, सेम क्या आता है, x. So this is going to be x here, x to the 0 dx का इंटीग्रेशन x, और dx बोलो आप, माइनस
लॉग एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1/x इंटू एक्स टू द पावर 0 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन, इट इज़ गोइंग टू बी x, और ये मल्टीप्लाई है with again dx. So at the end x log x minus dx रह गया, x and x get cancel, ठीक है, this x and this x get cancel. So finally dear, x log x minus x plus c. So this is our answer of log x, ठीक है. सो इंटीग्रेशन ऑफ log x क्या आ गया डियर, x log x माइनस x प्लस c. सो i इक्वल्स टू x log x माइनस x प्लस c. सी इसको आप लर्न नहीं रख सकते हो, इसलिए यहाँ चार्ट में जब हम इंटीग्रेशन की टेबल बना रहे थे तो वहाँ पे हमने इस log x का इंटीग्रेशन नहीं लिखा था, बिकॉज log x के इंटीग्रेशन में u इंटू वी रूल फॉलो की जाती है, और एंड में हमारा ये रिजल्ट ये आता है, ठीक है, जो मैंने यहाँ लिख रखा है. तो नो नीड टू लर्न, बट हाउ टू गेट, सम स्टूडेंट इसको लर्न भी कर लेते हैं, इट्स योर कॉल. इफ़ यू थिंक नहीं सर मैं log x का इंटीग्रेशन लर्न कर लूँगा तो अच्छी बात है, x log x माइनस x प्लस सी. बट सब चीज़ें लर्न तो पॉसिबल नहीं है, बट रन टाइम आप एग्जाम हॉल में फटाफट log x का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है. अब इसमें log x है, कभी x log x आएगा, x स्क्वायर log x होगा, तो ऐसे प्रॉब्लम का नेचर बढ़ता जाएगा, ठीक है. सो डियर एक बार फिर से आप log x को इंटीग्रेशन देख लो कैसे कैसे किया हमने. log x dx हमने क्या प्रोड्यूस किया, एक दूसरा टर्म u इंटू वी करने के लिए, तो मैंने x टू द पावर 0 लेना है. ऑलवेज रिमेंबर एल्जेब्रिक का फंक्शन लेंगे आप, तो ये एल्जेब्रिक और ये ट्रिग्नोमेट्रिक, बट log कम फर्स्ट टू एल्जेब्रिक, सो log x ट्रीटेड एज ए u, ठीक है. तो u लिया हमने log x को, so log x u आउटसाइड, इंटीग्रेशन ऑफ x टू पावर 0 dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ log x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ x टू पावर 0 dx एंड dx. सो विद दिस डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन करने के बाद सम टर्म गेट कैंसिल, x log x माइनस dx केम एंड इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x हियर, ठीक है. सो x log x माइनस x प्लस c, दिस इज योर आंसर ऑफ दिस इंटीग्रेशन ऑफ log x. फाइन डियर, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं. बाय पार्ट्स में तो देखिए हर एक इंटीग्रेशन के अंदर n नंबर ऑफ क्वेश्चन इज देयर. व्हाट इट इज इम्पॉर्टेंट, आपको स्किल सीखना है कि कैसे ये इंटीग्रेशन हुआ. बाय पार्ट से ही हुआ तो फिर कैसे हुआ, किसको u लिया, किसको हमने v लिया, ठीक है. लुक एट दिस, वी हैव अनदर सिचुएशन, लेट्स से इंटीग्रेशन, इसमें मैंने x log x dx. अब इस इंटीग्रेशन के अंदर जो इंटीग्रेंड है, इंटीग्रेंड अपना क्या है, x log x, तो ये इंटीग्रेंड u इंटू वी फॉर्म को एक्सप्रेस कर रहा है, दिख रहा है यहाँ पे, ये x एल्जेब्रिक log x v लॉगरिथमिक. सो u इंटू वी के लिए हमें u और v सेलेक्ट करना सिंपल हो गया, एल्जेब्रिक और लॉगरिथमिक है तो लॉगरिथमिक इज गोइंग टू बी u. सो we'll apply the rule, log x will keep outside, integration of x dx minus derivative of log x minus into integration of x dx, और ये पूरा क्लोज हो जाएगा with dx, ठीक है. सो नाउ log x तो आउटसाइड है, नो रूल, into integration of x is x square by 2 minus derivative of log x is 1 by x into integration of x will be x square by 2, and ये total when we multiply and again we have to integrate with this, ये बड़ी वाली इंटीग्रेशन पड़ी हुई है, करेक्ट. नाउ सो यहाँ तक हो गया डियर, रूल हमने लगाया और टर्म को इंटीग्रेट कर दिया, जो भी टर्म इंटीग्रेशन वाले थे, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग एक्स
minus 1 by 2 is constant. After simplifying inside, we have left with x only, x dx. ठीक है. So अब last integration हमारा रह गया, which is we can write x square by 2 log x minus 1 by 2 is constant और x का इंटीग्रेशन हो गया डियर x स्क्वायर बाई 2 और पूरी c आ गई एंड में, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. सो फाइनली मैं क्या लिख सकता हूँ? फाइनल आंसर इज x स्क्वायर बाई 2 log x minus x square by 4 plus c. So this is going to be the answer of given integration, which is x log x dx. Correct? ठीक है. सो आई बिलीव रूल्स क्लियर है. तो आपको u इंटू वी लगाने में ये हमने डिसाइड कर लिया कि x और log x है. x is u, x is your v, and log x is u because log x comes before algebraic. So I took log x as a u and v came x dx, derivative of log x into the integration of v, and then we integrated x का x square by 2 minus derivative of log x is 1 by x, and then integration of x dx is x square by 2, and then simplify, we got this x dx, again we integrated, we have x square by 2, and finally after simplifying we have this is a solution, x square by 2 log x minus x square by 4 plus c. So dear, I believe you understood this u into v rule. Check which one is u, which one is v. For this we have already weapon I, L, A, T, E. बेसिकली ये न्यूटन के द्वारा बनाया हुआ नहीं है. न्यूटन ने ये नहीं कभी बनाया था. ये मॉडर्न मैथमेटिशियन दे क्रिएटेड दिस. न्यूटन ने क्या सजेस्ट किया था कि टेक अ फंक्शन u सच v और u इस तरह से कि अगर आप u फंक्शन ले रहे हो तो उसका डेरिवेटिव जल्दी डिमिनिश हो जाए. जैसे यहाँ पे देखो हमने log x को u लिया तो इसकी डेरिवेटिव क्या हो गई 1 by x, और फिर वो x कैंसिल हो गया यानी डिमिनिश होगी, उसकी डेरिवेटिव खत्म हो जाए, डिमिनिश हो जाए एक या दो बार करने के बाद. तो उसने उस फंक्शन को u बताया. और जिसका डेरिवेटिव नहीं खत्म हो रहा है तो वो उसको, जैसे मान लो आपको मैं यहाँ पे log x को मैं u लेता अगर, तो log x का इंटीग्रेशन ही यहाँ फंस जाते आप नहीं, फिर से वो बाय पार्ट्स, फिर वो फंसा हुआ रहता है. इसलिए उसने ऐसा सजेस्ट किया कि जो आप u ले रहे हो दैट शुड बी डिमिनिश आफ्टर एक बार या दो बार डिफरेंशिएट करने पे. तो वो न्यूटन का कंसेप्ट था. बट मॉडर्न मैथमेटिशियन उसी कंसेप्ट को एक आइलेट फॉर्मेट के अंदर प्रिपेयर कर दिया, सो दैट व्हेन वी यूज दिस टूल बाय पार्ट्स टूल, सो वी गेट इमीडिएट दिस कंफर्मेशन दैट विच इज गोइंग टू बी u एंड विच इज गोइंग टू बी v. ठीक है, with the help of ilet. I is inverse, L is logarithmic function, A is algebraic, T is trigonometric, and E is exponential function. Fine. तो इस चीज को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे बाय पार्ट्स करते समय. ये रूल है, रूल को आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि रूल्स पता होगा और आइलेट पता होगा, देन ओनली यू विल डिसाइड विच वन इज u एंड विच वन इज v. ठीक है. चलिए एक और सिचुएशन पे आते हैं, एक और प्रॉब्लम देखेंगे. लुक एट दिस. हमने एक प्रॉब्लम लिया डियर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन log x. ठीक है, ये e टू द पावर x वाले कंसेप्ट में करेंगे. इससे मैं इसको चेंज कर रहा हूँ इस सम को, इसमें डिफरेंट अप्रोच होता है. टेकिंग अनदर क्वेश्चन. जो मैं क्वेश्चन बोल रहा था जो प्रीवियस सम के अंदर छिपी हुई थी, जिसको बोला मैं बाय पार्ट से सॉल्व करूंगा, उस सम पे आते हैं. x अपॉन 1 प्लस कॉस x. ठीक है, और मेरे ख्याल से यहाँ पे प्लस साइन x भी था, x प्लस साइन x इंटू डी एक्स. ठीक है.
सो यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि वन कॉस एक्स को पुट करने पे माइनस साइन एक्स, तो ये एक्स प्लस साइन एक्स के कॉम्बिनेशन में है, तो वी आर अनेबल टू सब्स्टिट्यूट. सो इस क्वेश्चन को देखने से ऐसा नहीं लगता है कि ये बाई पार्ट्स से होगा, क्योंकि u इंटू वी भी नहीं दिख रही है यहाँ पे. हाउ यू कैन जज दैट दिस इज गोइंग टू बी u इंटू वी, बिकॉज इट डजेंट लुक u इंटू वी फॉर्म. But there, this problem is solved by only u into v format. But before going to u into v, we have to split this integration into two integration. Which way? So x upon 1 plus cos x will take one integral plus sin x upon 1 plus cos x is another integral. Which we can do it because मैंने split किया है x upon 1 plus cos x and sin x upon 1 plus cos x, और fx plus gx की रूल इंटीग्रेशन की अप्लाई की गई है. ठीक है, that we can do. So rules of integration allows us. So यहाँ पे look at this, we have oxygen there. So x upon 1 plus cos x, all of you know 2 cos square x by 2 plus, अब यहाँ पे डियर हम थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री प्ले करेंगे. साइन एक्स है तो हाफ एंगल यूज कर सकते हैं. 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 कैन बी राइट इंटू डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2. सो विल सी सम टर्म गेट कैंसल, थोड़ा सिंपलेस्ट हो पाएगा. सो नाउ हियर 1 बाई 2 इज कॉन्स्टेंट, वी टेक आउटसाइड. कॉस स्क्वायर को मैंने यहाँ सेक स्क्वायर बना दिया. 1 बाई कॉस स्क्वायर इज सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, डी एक्स भी है यहाँ पे, इंटू डी एक्स प्लस 2 and 2 get cancel, 1 cos and cos get cancel, so left with tan x by 2 into dx. ठीक है, so first we have to split the integration, and wherever we can use trigonometric formula we use the trigonometric formula. ठीक है, क्लियर डियर. अब ये जो फॉर्मेट है, यहाँ जो हमने टर्म दिखाया यहाँ पे, ये अपने को u इंटू वी की ओर प्रोवोक कर रहा है, x इंटू एल्जेब्रिक इंटू ट्रिग्नोमेट्रिक. दिस इज प्लेन. tan x बाई 2 का इंटीग्रेशन पता है अपने को, दैट वी कैन इंटीग्रेट. बट x सेक स्क्वायर x बाई 2 में वी हैव टू अप्लाई u इंटू वी. फाइन. सो this I which is 1 by 2 outside complete, इसको बाहर करें, बॉक्स बनाएं, बिकॉज u इंटू वी रूल करना है. यहाँ पे एल्जेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक है. अगेन वी रिकॉल आइलेट ने क्या सजेस्ट किया है, एल्जेब्रिक कम्स बिफोर ट्रिग्नोमेट्रिक, सो एल्जेब्रिक इज बिकम u. सो x इज u हियर, सेक स्क्वायर x बाई 2, सेक स्क्वायर x बाई 2 dx, ये v हो जाएगा, माइनस डेरिवेटिव ऑफ विल गो u विच इज x with respect to x, and then integration of this sec square x by 2 dx, and we multiply it then this with dx. So this is by parts in this x into sec square x by 2 into dx plus tan x by 2. Now the integration of tan x by 2 is, first tan x का पता है अपने को log sec x. So this is log sec x by 2, और x के साथ कोफिशिएंट क्या है 1 by 2, तो इस 1 by 2 से इस पूरे इंटीग्रल पे डिवाइड हो जाएगी, प्लस c. फाइन. सो tan x by 2 का इंटीग्रेशन log sec x by 2, बिकॉज tan x का इंटीग्रेशन वी नो. व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ tan x? tan x का इंटीग्रेशन जो है डियर, दैट वी नो log sec x. ठीक है, प्लस c. बट यहाँ tan x की जगह tan x by 2 यानी कोफिशिएंट a है, tan ax प्लस b फॉर्म में. सो a इज हियर 1 by 2, दिस इज a 1 by 2. सो इस a से एंड में डिवाइड होगा, दैट इज 1 by 2. फाइन. सो नेक्स्ट, अब इनसाइड वी विल सिंप्लीफाई, जिनका इंटीग्रेशन होगा उसको इंटीग्रेट. अब सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन यहाँ क्या होगा डियर, tan x by 2 and divide by 1 by 2. Same concept, sec square ax plus b,
सेक स्क्वायर एक्स इज tan x, बट यहाँ पे a 1/2 है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, आप टेबल में याद करो, मैंने लिखवाया हुआ है, dx क्या हो जाएगा, tan ए एक्स प्लस बी अपॉन ए, एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। सो नाउ माइनस डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन हो गया tan x बाई 2 अपॉन 1/2 इंटू dx प्लस ये फ्लिप होके हो गया 2 log सेक x बाई 2 प्लस सी, ठीक है। सो फाइनली अब आप इसको इंटू करें 1/2x, सो ये 1/2 एंड 1/2 गेट कैंसिल, ठीक है। सो ये रह गया x tan x बाई 2 minus this 1/2 and 2 get cancelled, so left with tan x by 2 into dx plus 2 times of log sec x by 2 plus c। तो डियर ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है, लुक एट दिस, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ tan x by 2, दिस tan x by 2 हमने यहाँ log sec x by 2 अपॉन 1/2 किया है, एंड द सेम थिंग हियर इट इज, ठीक है। तो मैं इन दोनों टर्म को कैंसिल कर सकता हूँ बिकॉज उसका भी इंटीग्रेशन सेम आएगा। सो फाइनली i इक्वल्स टू x, finally the answer is going to be x tan x by 2 plus c, ठीक है। So you have seen this problem, all of you understood how we have to perform, कहाँ पे u into v करना पड़ा, पहले तो स्प्लिट करना पड़ा डियर, फर्स्ट वी हैव टू स्प्लिट, हमने पहले इसको स्प्लिट किया दो इंटीग्रल में, and then we use trigonometric formula 1 plus cos x 2 cos square x by 2, right? और यहाँ पे भी trigonometric formula यूज की गई, then this came x sec square x by 2 and this came tan integration of tan x by 2, ठीक है। so x sec square x by 2 में हमने u into v फॉलो किया, x is u, sec square x by 2 is trigonometric one, वो v हो गया, and then u into v rule we have applied, wherever derivative, wherever integration we integrated, differentiated, right? At the end we simplified, look at this, ये हमने integration of sec square x by 2 x tan x by 2 upon 1/2, यहाँ पे भी tan ये integration of sec square x by 2 is tan x by 2 by 1/2, then we open this bracket, and at the end we got x tan x by 2 plus c. This is your answer of this problem, ठीक है। So now the question comes, sir, whether such question it will come in NDA। तो डियर देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव बुक में है, पाथफाइंडर में है, RS अग्रवाल में है, तो आपको तो करना पड़ेगा। इवन 12th स्टैंडर्ड में भी ये सम है, अगर आप टेक्स्ट बुक उठाओ यू विल फाइंड दिस सम। सो आई डोंट थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट, वंस यू स्टार्ट डूइंग प्रैक्टिस तो आपको डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन आपकी डिमांड हो जाएगी, आप सिंपल क्वेश्चन को टच भी नहीं करोगे, यू विल फील दैट इट्स यूजलेस, सो देन यू स्टार्ट सॉल्विंग डिफिकल्ट प्रॉब्लम, ट्रिकी प्रॉब्लम, एंड दैट इज वॉट बीइंग अ ट्रेनर वी वांट। हम वही चाहते हैं कि आप डिफिकल्ट सम, ट्रिकी सम, अच्छे सम्स सॉल्व करें। सिंपल सम्स एवरीवन कैन डू, करेक्ट, सिंपल सम तो कोई भी कर सकता है, ठीक है। सो आवर मोटो, आवर इंटेंशन इज टू all of you well versed with the lengthy sum, difficult sum, so that NDA कैसा भी experiment करे you will be able to get the answer, ठीक है।
चलिए डियर, बाय पार्ट्स के कुछ और सिचुएशन को हम देखते हैं, जहाँ पे अभी हमने ऐसा देखा कि ये बाय पार्ट्स दिख ही नहीं रहा था और वी हैव टू गो बाय पार्ट्स ओनली। एक और सिचुएशन देखते हैं बाय पार्ट्स में ही। अभी एक इंटीग्रल है डियर, इंटीग्रेशन I इक्वल्स टू साइन ऑफ log x, साइन ऑफ log x इंटू डी एक्स। ठीक है, साइन ऑफ log x। अब ये साइन एक्स ही दिख रहा है, ये साइन log x लिखा हुआ दिख रहा है, बट ये साइन एक्स ही है, इसमें u इंटू भी नहीं है, साइन ऑफ log x। हियर यू डोंट think this is u and this is v. No, it's a sine log x one function. Sine like sine x. It's only one function. Sine of log x. So अब इसमें भी आपके मन में होगा कि सर यहाँ पे x to the power 0 कर दें, करेक्ट। x to the power 0 कर देंगे तो वो u हो जाएगा और इस साइन log x को v बना लूँगा। बट जब डेरिवेटिव की बारी आएगी तो फंक्शन बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, फिर इंटीग्रेशन डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, सो अब यहाँ पे थोड़ा सब्स्टिट्यूशन सोचते हैं कि क्या अगर मैं इस log x को, ठीक है, log x को मैं t पुट कर दिया, लेट्स सी। सो log x पुट किया तो हमारे पास डियर डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/x, ठीक है, इक्वल्स टू dt बाई डी एक्स। सो dx इक्वल्स टू x इंटू डी टी, ये आ गया डियर x इंटू डी टी। बट x तो कहीं दिख नहीं रहा है, x को कैसे t के टर्म में बनाए, तो log x से आपको x दिखता है, x इक्वल्स टू यहाँ क्या होता है डियर, e टू द पावर t, दैट वी नो। इफ log x इज t, सो x इक्वल्स टू e टू द पावर t, e इज हिडन हियर, e छिपी हुई होती है यहाँ पे। सो dx केम, x के लिए मैंने e टू द पावर t लिखना है, तो e टू द पावर t एंड dt। सो चलिए ये भी dx भी हमारा इन टर्म्स ऑफ t में आ गया, log x को ऑलरेडी आई टुक t, तो अब पूरी इंटीग्रेशन जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ t में, विच इज साइन t log x आई टुक t, एंड dx के लिए हमारे पास क्या आएगा, e टू द पावर t इंटू dt। ठीक है, सो नाउ आई हैव गॉट two functions, two different functions. Which are two different functions? एक तो आ गया साइन टी ट्रिग्नोमेट्रिक, और ये आ गया एक्सपोनेंशियल ई टू आर टी। सो वी कैन परफॉर्म यू इंटू वी रूल। ठीक है डियर, अब ये इंटीग्रेशन थोड़ी लेंदी होती है, कई बच्चे बोलते हैं क्या सर इसके लिए शॉर्टकट है। यस डियर, इसके लिए भी शॉर्टकट है, वो फॉर्मूला होता है, बट कई बच्चों को याद रहता है और कई बच्चों को नहीं याद होता है, तो वो भी मैं फॉर्मूला लिख दूंगा उसको, अगर आप याद कर लेते हो तो ठीक है, अदरवाइज इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। ये इंटीग्रेशन में स्ट्रेट अवे e टू द पावर t v बनने वाला है, बिकॉज एक्सपोनेंशियल है, दैट विल कम एट द एंड। ठीक है, एक बार डियर फिर से आप देख लें क्या क्या हमने किया। वी हैव इंटीग्रेशन साइन ऑफ log x, हमने log x को t लिया, सो 1/x dt बाई डी एक्स, डेरिवेटिव किया विथ रिस्पेक्ट टू x। So dx came this side and x dt, x को t में कैसे किया, तो log x इक्वल्स टू t होता है, तो x इक्वल्स टू e टू आर t होती है। So हमारा dx हो गया डियर e टू द पावर t dt। नाउ वी कन्वर्टेड एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ t, sin t e टू द पावर t एंड dt। ठीक है, अब फ्रॉम हियर वी विल अप्लाई द u इंटू v रूल। सो डियर ये तो कंफर्म है कि आपने क्या करना है, साइन टी को u लेना है, ठीक है, साइन टी एज ए u एंड e टू द पावर t एज ए v। रूल अप्लाई हमने कर दिया, u आउटसाइड इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन टी, मैं लिख दूँ डायरेक्ट कॉस टी, ठीक है, और इन टू ई टू द पावर टी का भी इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर देता हूँ मैं, दैट इज ई टू द पावर टी। ठीक है, एक छोटा वाला इंटीग्रेशन कर दिया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया dt,
थोड़ा इस स्टेप को ध्यान से देखो आप, मैंने क्या क्या किया है, साइन टी का डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है, और फिर छोटा वाला इंटीग्रेशन जो था e टू द पावर t का, वो मैंने इंटीग्रेट कर दिया और ये दोनों का प्रोडक्ट dt के अंदर आ गया. नाउ e टू द पावर t का इंटीग्रेशन डियर e टू द पावर t, एंड दिस साइन t तो आउटसाइड है, दिस विल बी आउटसाइड, माइनस यहाँ पे लुक एट दिस, ये मुझे फिर से लग रहा है कि एक और बाई पार्ट्स करने की स्थिति में हम हैं. कैसे? लुक एट दिस, e टू द पावर t इंटू कॉस टी आ गया, ये कॉस टी डी टी. तो एक बार और बाई पार्ट्स होगा. नाउ द क्वेश्चन कम्स कि ये चलता ही जाएगा क्या, कॉस का फिर साइन हो जाएगा? नहीं, एक जगह स्टॉप होगा ये. कैसे? वहाँ पे हम ये आई प्रोड्यूस कर देंगे. ये जो पूरी e टू टी साइन टी है, ये एक बार रिपीट होगी एंड में, सेकेंड स्टेप में या थर्ड स्टेप में. तो उसके लिए वी कैन राइट आई. सो वापस देखते हैं डियर, यहाँ से आइए e टू द पावर टी, this is e to the power t, e to the power t sin t माइनस एक और बाई पार्ट्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे. तो cos t आपका बाहर आएगा डियर, ट्रिग्नोमेट्रिक है, एक्सपोनेंशियल अंदर होगा, e टू आर टी 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 माइनस डेरिवेटिव ऑफ cos t क्या लिख दूँ मैं, माइनस साइन टी. ठीक है, फिर छोटा वाला e टू आर टी का इंटीग्रेशन e टू आर टी, और ये क्लोज हो गया विथ डी टी, बॉक्स क्लोज. सो यहाँ से वापस आते हैं e टू द पावर टी साइन टी माइनस, ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया डियर कॉस टी, और इंटीग्रेशन ऑफ e टू आर टी इज e टू आर टी, ये माइनस माइनस ये प्लस, और ये माइनस की वजह से ये माइनस क्या रह गया, e टू द पावर टी साइन टी डी टी. ठीक है, दिस इज योर आई. सो वी हैव इंटीग्रेटेड. हमने दो बार बाई पार्ट्स करना पड़ा डियर, बिकॉज वो रिपीट रोटेट हो रहा था. ये लूप है, e टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स को लूप भी कहते हैं, ये रोटेट होती है. तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि e टू द पावर टी साइन टी इट केम, एंड दिस इज नथिंग बट आई. आई भी हमारा क्या था, साइन टी e टू आर टी. तो ये जो e टू द पावर टी साइन टी डी टी है, इसके लिए व्हाट वी कैन राइट, अगेन विल राइट आई, या आई दोबारा लिख लेंगे. ठीक है, सो आई इज हियर एंड हियर वी कैन टेक e टू आर टी कॉमन, सो साइन टी माइनस कॉस टी, और दिस इज माइनस आई. एंड ऑलवेज रिमेंबर यहाँ माइनस ही आएगा, प्लस रहता तो ये आई आई कैंसिल हो जाएगा. सो दैट इज वाई वी हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल कैलकुलेटिंग प्लस माइनस एंड एवरीथिंग. ठीक है, सो दिस शुड बी माइनस आई. अब माइनस आई इधर लिया आपने, तो ये क्या हो गया, टू आई इक्वल्स टू e टू द पावर टी साइन टी माइनस कॉस टी. ठीक है, सो फाइनली अब हम आई कैलकुलेट कर लें और t को रीसब्स्टिट्यूट कर दें. सो i इक्वल्स टू 1/2 e टू द पावर t हमने क्या ले रखा है, t वी हैव टेकन log x, और e टू द पावर t हमारा क्या बन जाएगा डियर, e टू द पावर log x क्या होता है, x है ना. दिस इज e टू द पावर t इज x. सो e टू द पावर t को आपने क्या लिख दिया, x. ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ e टू द पावर t अगेन विल गो फॉर x here. This should be x by 2 sin t हमने लिया है log x माइनस cos log x plus c. So this will be the answer. So dear, देखो इसको समझाने के लिए हमें इतना टाइम लगा. Once you start, if you understood, अगर आप समझ जाते हो तो आप जितनी स्पीड में हो कर सकते हो, थोड़े प्लस माइनस को ध्यान दो. हाँ, तो इस तरह के सम आप कर पाओगे. आई एम ऑल्सो श्योर दैट ऐसे एक भी सम नहीं आएंगे, बट फिर भी दीज सम्स आर गिवन इन योर कॉम्पिटिटिव बुक, तो हमें आना तो चाहिए, मालूम तो पड़ना चाहिए. आप ही मेरे से क्वेश्चन पूछोगे, सर ये सम करके दो, तो दैट इज़ वाई आई एम सॉल्विंग दिस सम्स. सो वंस यू गो थ्रू,
सो देन आप खुद से भी सम को हैंडल कर सकते हो, ठीक है। तो आप अंडरस्टूड हमने क्या क्या किया, इस log x को सब्स्टिट्यूट किया विच इज t, डिफरेंशिएट हुआ, फिर x को इन टर्म्स ऑफ t में बनाया, dx केम e टू द पावर t dt, करेक्ट। फिर हमने साइन t e टू t dt, फिर u इंटू वी रूल फॉलो किया है यहाँ पे, जैसे u इंटू वी रूल, u outside, integration of v, derivative of u, integration of e to r t. फिर आफ्टर दिस व्हाट हैपेंड कि एक और बाई पार्ट्स करना पड़ गया अपने को, है ना। यहाँ पे एक और बाई पार्ट्स करना पड़ गया ई टू आर टी कॉस टी में, तो हमने एक बार और बाई पार्ट्स किया। सो एट द एंड हमें यहाँ पे दिस स्टेप वी गॉट आई, और ये आई हमने यहाँ शिफ्ट किया, सो दिस बिकम 2i, एंड फाइनली this I equals to 2 came this side, e to the power t is your x, correct, this x, so x by 2 sine of log x minus cos of log x plus c, fine. So I think you understood this problem, practice कीजिए तो naturally आप सारे क्वेश्चन को समझ पाएंगे, ठीक है। देख लीजिए साइन लॉग एक्स का इंटीग्रेशन ये हुआ, ये सारे प्रॉब्लम्स यू विल गेट इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो, और कॉम्पिटेटिव बुक में भी अवेलेबल है। चलें, सो नाउ विल मूव टू सम मोर प्रॉब्लम इन बाय पार्ट्स, करेक्ट डियर। सो लुक एट दिस, एक और सिचुएशन पे आते हैं, बाय पार्ट्स का ही प्रॉब्लम लेंगे। आई इक्वल्स टू, आज के इस लेक्चर में बाय पार्ट्स के ही प्रॉब्लम और जो मैंने सब्स्टिट्यूशन के कुछ सम्स किए हैं दैट वी हैव टू डिस्कस ओनली। सपोज डियर वी हैव वन सिचुएशन, आई इक्वल्स टू x इंटू 2 to the power x dx, ठीक है। तो ये तो सामने से दिख रहा है डियर कि x 2 to r 2x, x इज अलजेब्रिक, this is अलजेब्रिक, ठीक है, अलजेब्रिक दिख रहा है,